से क्रेडिट लिंकेज हो कि मार्केट को एक्सेस जोगाइबा किंबा इकोसिस्टम तैयारी करिबा एनएसआईसी रो स्मॉल एवं मीडियम स्केल इंडस्ट्री को हैंडलिंग सपोर्ट जोगाइबारे गोटे रही बड़ रोल। एमएसएमई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2018 अवसर में आम भेटिलु एनएसआईसी रो चेयरमैन रविंद्रनाथ को। Sir, welcome to Make in Odisha. Indian business system is going through a transformational change. Basically, we are talking about Make in India, innovation, startup, and GST put in place. So, in this transformational phase, how you redefine the role of NSIC? We strongly believe that Indian MSME sector is a very resolute sector. Right, sir. It is not that they are finding the challenges for the first time. They have come up through challenges, whether it was non-availability of credit or whether it was non-availability of trained manpower. They still, they struggled. And we made a mark in the world. Today everybody looks towards Indian MSME. If you look even in this exhibition, you will find that there were 31 people, 31 units, international participants who have come because we could mobilize them to have synergies with the Indian MSMEs. Right. Whether it was demonetization, whether it was GST now, I'm sure these are all processes by which refinements will take place. Right. We all in our heart of hearts understand that Indian systems require this cleaning. We did not have that setup wherein at the end of the day we will know as to how much is the tax which we are supposed to pay. So these sort of things, when they come in, we know what company is doing what, and we will definitely be there with the Indian MSMEs. And when I say we, means NSIC. We will be there with the Indian MSME sector to help them tide over these challenging times also. Basically, two major problems Indian MSMEs are facing. What is one is credit linkage. Second one is marketplace. Sure. So, how you are helping them out into the situation? See, credit linkage is something, as I said, one of the activities which we perform is providing credit support. Right, sir. Now, credit support we render in two methods. Right. Tying up for the raw materials. Okay. And when we arrange the raw materials, if they do not have the money, we make the payment to the suppliers and get the materials for the unit. The material moves from the supplier to the unit, and we make the payment on their behalf. Okay. They pay us simple interest, which is there for 90 days. They use it for less than 90 days. They can pay us back before that. If they want to use it more than 90 days, then there is a process of penal interest which works. Okay, sir. So that is one way we render credit support against the security of a bank guarantee, which they can avail out of the non-fund based limits they have. To what amount? For a single unit, it is 5 crores. Okay, sir. For a group of units, it is 15 crores. Right, sir. So that is what we do. But then, what we believe we cannot do on our own is something which we do by tying up with the banks. After the merger of these SBI banks, right, sir, we have tied up with 25 banks. Okay, sir. Now, any amount of loan facility they want, any nature of loan facility, any credit facility they want, be it fund based, be it non-fund based, be it term loan, be it cash credit, be it LC, be it BG, we arrange that for these MSME units. And the best part is, we do not charge anything from these MSMEs. Now, how the MSMEs will get connected with NSI? I see, because the awareness is not there in the system. See, that is where we do a lot of campaigns. And that is what we intend doing more and more. We are also planning now that we will be availing the services of other stakeholders. Right, sir. We are even thinking of availing the services of students. Students also have a project, and engaging with the MSMEs could be a very useful project for them. And what would they be doing? They would be reaching out to the MSMEs, trying and assess what their requirements are. उनको raw material चाहिए, उनको credit चाहिए, credit चाहिए तो किस तरीके का चाहिए, raw material चाहिए तो कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, वो सारी चीजें जब वो collate करके लाएंगे, then NSIC, processes that, and we reach out to the suppliers of those materials. Raw material चाहिए तो material supplier के पास जाएंगे. Advantage is, then we know what is the quantum of material they require, which enables us to go and negotiate from a position of strength. Regarding marketplace, sir, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, marketplace के लिए
एक तो हम अपना B2B पोर्टल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं. राइट सर. होपफुली बाय मार्च एंड वी विल हैव इट इन प्लेस, बिकॉज वी बिलीव कि अभी तक जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया मार्ट हो, चाहे वो बाकी के जो B2B पोर्टल्स हों, उनके माध्यम से हमारा पोर्टल में कुछ कमियां थी. राइट सर. तो वी थॉट ऑफ एड्रेसिंग देम एंड वी हैव एंगेज्ड एन एजेंसी व्हिच इज ऑलरेडी वर्किंग. बाय मार्च एंड वी विल हैव दैट पोर्टल रेडी. Right, so sir. that would be one method. Second method is we participate in tenders. Right sir. Wherein we participate on behalf of these MSMEs. We get those orders and we give it to them. Okay. To these MSMEs to supply. So Then what we will are be the front end. So what will be the difference between GEM and this portal? See, GEM, I always believe, अगर ऐसी बात होती तो शायद हिंदुस्तान में एक बैंक होता. Right sir. आज कितने बैंक हैं? ओके सर. प्राइवेट सेक्टर भी आ रहे हैं. ओके सर. फॉरेन बैंक भी आ रहे हैं. राइट सर. तो अगर एक पोर्टल के माध्यम से ही सभी काम होने लगेंगे तो फिर तो बहुत बढ़िया हिसाब हो जाएगा. ओके सर. बट NSIC टेंडर मार्केटिंग जेम आने से पहले भी था, और जो चीजें जेम हम ये मानते हैं वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अनदर थिंग इज सर 20% जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और जो PSUs की वगैरह MSME से लेंगे, लेकिन वेरी डिस्पाइट द गाइडलाइन ये सब नहीं हो पा रहा है. देखिए, मैंने जैसे अभी अपने प्रोग्राम में भी बोला कि अभी तक दिक्कत क्या थी कि CPSEs बोलते थे कि हमें मालूम नहीं है कि SC ST यूनिट्स कहाँ हैं, हमारे पास क्रेडिबल वेंडर्स नहीं हैं. तो हमने उनके लिए एक पोर्टल बनाया मंत्रालय ने. उसमें ये कहा गया कि जितने भी प्रोक्योरमेंट्स अगर CPSEs को करने हैं, मैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात का जवाब दे रहा हूँ, तो आप वो रिक्वायरमेंट्स अपनी प्रोक्योरमेंट्स की उस पोर्टल पे डालिए. उस पोर्टल का नाम है संबंध पोर्टल. आप उस पोर्टल पे डालिए. उससे क्या होगा, सबको मालूम होगा कि क्या खरीदा जाना है. राइट सर. फिर जो सप्लायर्स, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस उसको सप्लाई कर सकेंगे, वो उसको देखने के बाद अपनी सप्लाईज को पिच इन करेंगे. राइट सर. उनके टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेंगे. राइट सर. फिर SC ST एंटरप्रेन्योर्स भी इसी तरीके से वो जो 4% करना वो भी करेंगे. वो करेंगे. जब वो सप्लायर्स भी आने लगेंगे तो होगा क्या, आपको प्रोक्योरमेंट क्या होनी है वो भी मालूम है, सप्लायर्स कौन है वो भी मालूम है. टर्म एंड कंडीशन सर इतना रह जाता है कि उस बिडिंग प्रोसेस में SME पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. हमारा मंत्रालय है इस विषय में भी इस बात की पूरी जानकारी ले रहा है, और प्रयास यही है कि ऐसी कंडीशंस ना डाली जाएं जिससे कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस और स्पेशली SC ST एंटरप्राइजेस उन टेंडर से वंचित रह जाए. Okay, there also, sir, there is certain demand to raise it to 50% for MSME. My thought is पहले 20% तो कर लें. Right, sir. पहले 4% तो कर लें. Right, sir. फिर आगे सोचेंगे ना. उड़ीसा के लिए सर आपका क्या प्लान है, विजन है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमने एक तो भुवनेश्वर में ही 1.25 एकड़ में एक बिल्डिंग बनाई है. राइट सर. जिसमें तकरीबन 65 करोड़ रुपया हमने इन्वेस्ट किया है. वो बिल्डिंग कंप्लीशन पर है. उस बिल्डिंग में भी हमारे कुछ प्लान्स हैं कि उसको कैसे यूज करना है. तो क्या है प्लान? मे बी बाय नेक्स्ट मंथ वी विल बी एबल टू कम आउट विद आवर प्लान्स एज टू व्हाट एग्जैक्टली उसमें कितने स्टेक होल्डर्स को लाना है. क्योंकि हमारा प्रयास ये होता है कि अवर ऑफिस and wherever we are, we should be a one-stop solution provider whenever we create a business park. Okay. It's like a business park. Then we are talking to various foreign countries also. We recently signed an MOU with Malaysia. We are in discussion with South Korea. We are in discussion with Vietnam and Taiwan. And all this is not only for NSIC. All this is for building synergies between Indian MSMEs and their SMEs. Okay. So that we can create a platform wherein technology transfer takes place. Okay. So when we do that, naturally some of these Indian companies would come. When you see these participants, these international participants, right, I was in discussion with them. They want Indian joint venture companies right, sir. who can collaborate with them. अगर मलेशिया को ऑटोमोबाइल सेक्टर चाहिए और ताइवान को मशीनरी सेक्टर चाहिए, तो हम दोनों के लिए इंडिया में इतना समर्थ है कि हम दोनों के लिए अलग अलग अपने MSMEs को वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं. Right, sir. So that is what NSIC is meant for.
रिगार्डिंग सर इंक्यूबेशन फैसिलिटी, जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसमें कुछ रहेगा एसएमई के लिए कोई स्पेस? नहीं, उसमें मशीनरी का इंक्यूबेशन तो नहीं हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर उड़ीसा में अगर हम सर्विसेज सेक्टर का इंक्यूबेशन चला सके, वहाँ चलेगा सर? क्यों नहीं चलेगा। ओके सर। अब कई सारी चीजें हैं जिसका मैं आज खुलासा नहीं कर सकता। ओके सर। बट हम उसका पूरा सदुपयोग करेंगे ताकि जो भी वहां पर आए उसका देखें कि इसका पूरा लाभ एनएसआईसी ने वो किया है। एसएमई को कुछ बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे इंक्यूबेशन के लिए अगर होता है? ऐसी हमारा जो प्रयास है इंक्यूबेशन का है वो उन लोगों के लिए है जो या तो शिक्षा से वंचित रहे या जैसे हम कहते हैं ना स्कूल वॉकआउट्स, राइट, पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। सर उस तरह के जो यूथ हैं उनके हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए आप देखिए ये जो इंक्यूबेशन का मॉडल है, राइट, और जो स्किलिंग का हमारा प्लान है वो इन्हीं लाइंस पर है। ओके सर। इंक्यूबेशन में मैंने जैसे कहा मोजा बनाने की मशीन, राइट सर, पत्तल के डोने बनाने की मशीन, राइट सर, सॉक्स इसका पेपर नैपकिन बनाने की मशीन, टॉयलेट रोल बनाने की मशीन, किचन रोल बनाने की मशीन, ब्रेड एंड बिस्किट बनाने की मशीन, इस तरह की हमारे पास विभिन्न टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम स्थानीय उनकी जो एडवांटेजेस हैं उसके बेसिस के ऊपर हम लेके आते हैं। अच्छा, लाइक सिपेट, दे आर प्रोवाइडिंग लाइक सिपेट। मैंने जैसे कहा ना, एक एजेंसी सारा सोल्यूशन नहीं दे सकती। ओके, मगर जो सिपेट कर रहा होगा इकोसिस्टम, we will provide, we'll bring in those machines on which people will get trained. Okay, sir. Then we can help them in even getting those machines from the suppliers which are registered with us. और जो डिस्कस कर रहे थे गुप्ता सर कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सब रीजनल लेवल पे खोलना है, उसके लिए सर आप क्या जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने गुप्ता साहब से चर्चा करी इस बारे में, और हमारा प्रयास ये है कि वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी लेने के बाद, देखने के बाद, उपयुक्तता देखने के बाद हम फिर उस एरिया में क्या एनवायरनमेंट है, क्या टेक्नोलॉजीज वहाँ चाहिए, वो डिसाइड करने के बाद वी ब्रिंग इन द टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे मैंने अभी आपको सेनेगल की बात करी, राइट, सेनेगल में हमने पीनट के ऊपर सारा काम किया, पीनट पेस्ट, पीनट ऑयल, पीनट बटर। वहाँ आम बहुत होता है तो मैंगो पल्प, मैंगो पेस्ट, टमाटर बहुत होता है। तो जो हम बाकी जगह पे करते हैं, जो हमने इथोपिया में किया वो वहाँ नहीं किया, तो इसलिए जो एडवांटेजेस उड़ीसा में होंगे हम उसी हिसाब से यहाँ पर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से ऑफरिंग आया है आपके लिए? जैसे मैंने बताया, हरियाणा के साथ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, फरीदाबाद दिल्ली के पास, टेक्नोलॉजी सेंटर एज वेल एज एन इंक्यूबेशन सेंटर। वी आर इन डिस्कशन विद हरियाणा फॉर 3 more places, with Punjab, with Andhra and Telangana also we are in discussion, and Odisha also. क्या आना है सर प्लान, कुछ मेजर प्लान कुछ है आगे जाके? देखिए, हमारा ये मानना है कि इंक्यूबेशन सेंटर, क्योंकि हमारे मंत्री जी भी बोलते हैं बेरोजगार से स्वरोजगार की यात्रा, राइट, और अगर युवा को हम एक उद्यमी बनाने में सफल रहे, क्योंकि वो ही रोजगार देता है, राइट सर, और इसी मॉडल में, इंक्यूबेशन के मॉडल में कि हम नए जब उद्यमी पैदा करेंगे, वो ही उद्यमी, हम कहते हैं ना एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी, टू एक्सपोर्ट्स, टू ऑल दैट। इंडिया हैज सच अ ह्यूज मार्केट कि आप जाते हैं कन्फेक्शनरी शॉप पे, वो आपको हर बार बताता होगा सर ये नया तरह का बिस्किट आया है, तो अब आप पार्ले जी के बिस्किट नहीं खाते होंगे, अब आप ब्रिटानिया के बिस्किट नहीं खाते होंगे, अब आप नई तरह के बिस्किट खाते हो। यही हमारी स्ट्रेंथ है। ओके सर। हमारे बच्चे जब हमारी मशीनों पे सीखते हैं ब्रेड और बिस्किट बनाना, और वो जबकि जाके बेचते हैं, तो वही उद्यमी बनता है। ओके। मसाला पीसने वाली एक उड़ीसा की अगर स्टोरी है, तो हमारे पास भी एक ऐसा युवा है जिसने 1.5 साल के अंदर अपना बिजनेस 2 करोड़ पे पहुंचा दिया टर्नओवर, बैंकेबल लिमिट्स ले रहा है और एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है। तो यही भारत का भविष्य है। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।